Hi friends, today I am going to discuss you about plate load test PLT. In plate load test, bearing plate, first thing is bearing plate, this one. The bearing plate should be circular or square. Thickness is not more than 25 mm. Grooved bottom, the plate of this is grooved from internal side, from इनवर्ड्स, अंदर की साइड्स में ग्रूव्स बने होंगे. एंड हैंडल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन इट. नेक्स्ट इज टेस्ट पिट. डेप्थ इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. विड्थ इज 5 times. In this, the depth of this pit should be 5 times the width of plate. फॉर एग्जाम्पल प्लेट की बिर्थ जो है BP है, प्लेट की बिर्थ है BP, देन दिस डेप्थ शुड बी 5 times ऑफ दिस BP. दिस डेप्थ मस्ट बी 5 times ऑफ BP. And 5 mm thick sand bedding. Sand bedding is placed in between this plate, below this plate. Here sand bedding of 5 mm thickness is provided. Okay. Next is loading arrangements. Loading arrangement is done by hydraulic jack. This is hydraulic jack. And reaction as in this hydraulic jack, reactions are made by 2 methods. By gravity load. ग्रेविटी लोड में हम मैनुअली कोई भी बैग्स या कुछ ऊपर से हैवी सैंड बैग्स और समथिंग वी विल प्रोवाइड फॉर लोडिंग. ओके. एंड इन reaction truss method. Reaction truss method, we used to provide a truss here. We used to provide, instead of this, a truss is provided. A truss is provided here. This is the basic difference. Okay, setting the plate. First thing we have to do is setting the plate. प्लेट को हम कैसे सेट करेंगे? प्लेट इज प्लेस्ड ऑन 5 mm थिक sand layer. As I've earlier discussed, this is placed on 5 mm thick sand layer. Centered by plumb bob. It should be centered in the center of this truss. Hydraulic jack should also be vertical, 70 gram per centimeter square. Setting pressure is applied before test. This hydraulic jack also be vertical. अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो फिर रीडिंग लेने में हमें ईजी नहीं हो पाएगा. लोडिंग increments. Pressure is applied without any fluctuation. Pressure should be equal without any fluctuation, है ना. और eccentricity means load should be proper at the center. Load should be proper at the center of the plate. Eccentricity होनी चाहिए, fluctuation नहीं होनी चाहिए, and impact load should be avoided. और sudden load भी नहीं होना चाहिए, equal load लगना चाहिए. Okay. Load starts with 1 kg centimeter square or 1/5 of the estimated bearing capacity of the soil. Load starts at 1 kg per centimeter square. और जो फर्स्ट सीटिंग होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, 150 सेंटीमीटर पे उसको अवॉइड करेंगे.
और इसका जो थिकनेस होता है वो हमारे पास दे रखा होता है, जितना हमें इसको इंसर्ट करना है 150 mm पे इसको फर्स्ट सीटिंग देनी होती है। और नंबर ऑफ़ ब्लोज हम देंगे, नंबर ऑफ़ ब्लोज कितने देने हैं हमें, 30 नंबर ऑफ़ ब्लोज देने हैं। और यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है इसको, है ना। और यहाँ पे और एक और चीज़ होती है, डायल गॉजेस हमारे अप्लाइड होते हैं। डायल गॉजेस एट 120 डिग्री पे होते हैं। ये डायल गॉजेस 3 लगे होते हैं, 3 डायल गॉजेस विल बी देयर, जो कि 120 डिग्री पे प्रोवाइडेड होते हैं। और सेटलमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इंटरवल ऑफ 1 मिनट after settlement and observation, the load is increased at interval of 1 minute, 2.25 minute, 4 minute, 6.25 2 minutes, 25 minutes, and 9 minute, 16 minute, 25 minute. Then after every hour till the settlement of 25 mm. जब तक 25 mm की सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक फिर हम एक एक आर्ली देते रहेंगे उसका, ठीक है। अब लोड सेटलमेंट कर्व इज ड्रॉन टू फाइंड द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि हमारे एक्स एक्सिस में दिया रहता है Q अपॉन ए। Q क्या है, लोड जो हम दे रहे हैं उसको, और पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। और यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे सेटलमेंट कितना हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे सेटलमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो OCC का बनेगा, डेंस सॉइल होगी, स्टिफ सॉइल होगी और OCC होगी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। और ये न्यूट्रल कंसोलिडेटेड सॉइल का डायग्राम है NCC और OCC के बीच में, है ना। NCC में पहले तो स्ट्रेट जाएगा ये, फिर कर्व दे के यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगी सडन। और NCC सॉइल में ये ग्राफ सीधा आ जाएगा। NCC हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन से वाले पे पॉइंट हमें लेने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए सेटलमेंट पॉइंट या बेयरिंग कैपेसिटी नोट डाउन करने के लिए हम एक और डायग्राम का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लॉग डायग्राम ऑफ QU अपॉन A, है ना। और यहाँ पे लॉग सेटलमेंट फॉर NCC सॉइल। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा ग्राफ ऐसे स्लांट में जाएगा और फिर हमें कोई भी पॉइंट एक मिल जाएगा। तो इससे लॉग डायग्राम से हम NCC सॉइल का ग्राफ बना लेंगे, ओके। और लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी, लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लेट लोड टेस्ट की, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और character of the soil can be find up to the depth of twice the width of bearing plate। सिर्फ हमें twice of the width of the plate तक ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है, और उससे बड़ी फुटिंग होगी तो हमारे पास कोई बेयरिंग कैपेसिटी हम उसकी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। This is short duration test, but the bearing capacity of the soil is find out at the long duration। ये जो टेस्ट हम करते हैं ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे 24 आवर्स में कर लिया या विद इन वन डे कर लिया, 24 आवर्स में कर लिया या बिफोर 24 आवर्स कर लिया। बट हमारी जैसे बिल्डिंग हमने कोई कंस्ट्रक्ट करी है तो उसका लोड इफेक्ट जो होगा वो बाद तक भी हमें उसमें सॉइल में देखने को मिलेगा, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टरवर्ड। And last is effect of the side of foundation is not considered। इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ फाउंडेशन इज नॉट कंसिडर्ड। हमारी अगर फाउंडेशन प्लेट से ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।